Fine students, last time we have done capacitance. What is the capacitance? Capacitance, it can be defined charge per unit potential. C is equal to Q over V. We know that the unit of the capacitance, SI unit of the capacitance, unit of C is farad. So how we can define 1 farad? So how we can define 1 farad? Charge, the unit of the charge is 1 coulomb and the unit of the potential is 1 volt. Here volt. We can write down volt 1 coulomb over joule per coulomb, because we know that potential is defined as work done per unit charge. From this expression we can write down joule per coulomb. Okay, so put the value here, 1 coulomb square over 1 joule. Okay, now the coulomb is what? We know current is equal to flow of charges. I is equal to Q over T. Here Q is equal to I into T. Now put the value. I, current, we can measure in ampere and time in second. Okay, so put the value of the coulomb here. So this expression can be write as 1 ampere second square over joule. Joule we can write as Newton meter. Work done, we know that work done is equal to force into displacement. Okay, so here from this we can write as Newton meter. So we can easily write down the dimension from this formula. So 1 farad can be defined as 1 farad is a very large unit of capacitance. For practical purposes we use many other like millifarad, microfarad, picofarad. Okay, so how we can define the unit of the capacitance? 1 farad. The capacitance of a conductor 1 farad is 1 farad is defined if the addition of a charge of 1 coulomb to it to increase the potential by 1 volt. Okay, if 1 potential can be added, then 1 volt can be increased of the conductor. So that's why we can say that it is a 1 farad. The capacitance of the conductor is 1 farad. Clear बच्चे? Now what will be its dimension? Dimension देखो क्या आ जाएंगे इसके, a square second square Newton meter. You know how to make a dimension. So its dimension is m minus 1. After solving you have to solve it. L t minus 2 t 4 ampere square. Clear? So this is a dimension of the capacitance. Clear bache? Now next one, in the last lecture we have done the spherical capacitor. Now we know in the spherical capacitor there is some limitation. First limitation, the energy is not bounded, and second one, its capacitance is very small. Okay, so therefore the another parallel plate capacitor have been made to omit this limitations. Clear? So now the next one is a parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor.
Now what is a parallel plate capacitor? Parallel plate capacitor बच्चे क्या है हमारे पास? This is called the parallel plates. Parallel plates होती है हमारे पास, ठीक है, और इसके बीच का जो मीडियम होता है बच्चे वो कैसा होता है? इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है. दिस प्लेट्स आर द चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है, ऑपोजिटली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट. क्लियर? दिस इज कॉल्ड द कैपेसिटर. You can see the two symbols of these capacitor. This is called a fixed capacitor, which capacitance cannot be changed for our convenience, and another one is a variable capacitor. So this is called a variable capacitor. ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बचे है क्या? हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, एंड इन बिटवीन उनके बीच में क्या है? एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है, ठीक है. ओके, कैपेसिटर आपको पता है, अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ द 2 कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम दैट इज स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लास्ट टाइम हमने किया था, ठीक है बच्चे. हाँ जी, इसने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चे, इसने क्या क्या ओमिट किया? फर्स्ट वन, इट्स एनर्जी इज बाउंडेड. देखो बच्चे कैसे बने हैं, इनकी एनर्जी हमेशा बाउंडेड रहेगी, ठीक है. इन बिटवीन द कैपेसिटर एनर्जी इज बाउंडेड, ठीक है. और हम देखेंगे आगे कि इसकी जो कैपेसिटेंस आएगी हमारे पास इज लार्ज. कैपेसिटेंस इज लार्ज, ठीक है. एक बात का यहाँ पे ध्यान रख के चलना बच्चे, ये हमारे पास प्लेट्स हैं, ठीक है. ये बनाते हम ऐसे हैं, दिस इज लाइक दिस वन, ओके. 2 पैरेलल प्लेट्स आर देयर. फर्स्ट ऑफ हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन हैज अ नेगेटिव, ओके. This one is a minus Q, okay. The area between them you consider that is a D, and the area of first we can consider area A1 and another one is a area A2. So we always consider that the area of plates is much greater than the distance between the 2 plates, ठीक है. So these are the must condition. So while we taking the parallel plate capacitor, so there is a 2 must condition. First one must condition is what bache? Area of the plates is much greater than the distance between the plates. Clear? And second one, the area of the first plate is equal to the area of the second plate. ओके, एरिया हमने दोनों के बच्चे क्या लेने हैं? सेम लेने हैं. और एरिया क्या लेना है? ग्रेटर देन लेना है. किससे? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. क्लियर बच्चे? तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने क्या देखना है? कैपेसिटेंस. क्लियर? क्या देखना है? कैपेसिटेंस. तो हमें पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? C इज इक्वल टू Q upon V. Is it valid for a parallel plate capacitor? क्या ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वैलिड है? Q over V जो हमने स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए लिया था बच्चे. Is it valid for a parallel plate capacitor? No, because here is 2 plates, ठीक है. So across the plates some potential difference is across developed, ठीक है. If we बच्चे अगर हम इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है, अगर इसको एक बैटरी के साथ हम कनेक्ट कर दें तो इसमें बच्चे क्या होगा? सम पोटेंशियल डिफरेंस
क्रिएट हो जाएगा बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे पॉजिटिवली चार्ज है, दिस वन इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो, ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल हमेशा बच्चे कहाँ से कहाँ होता है आपको पता है, पॉजिटिव टू एक्टिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और आपने एक और बात याद रखनी है कि जो हम ये ले रहे हैं बच्चे प्लेट्स, दैट इज़ अ इनफाइनाइट लॉन्ग। क्लियर, दैट इज़ अ इनफाइनाइट लॉन्ग। क्लियर। सो हमारे पास बच्चे जो डेफिनेशन आएगी इसकी, वो कैसी डेफिनेशन आएगी, चार्ज पर यूनिट चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, सो कैपेसिटेंस, ठीक है। यहाँ से चार्ज निकालना हो तो बच्चे कितना आ जाएगा, C इंटू डेल्टा V, पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर बच्चे, दिस पोटेंशियल इज व्हाट बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन प्लेट्स। क्लियर, ओके। सो हाँ जी बच्चे, अब हमारे पास अगर हमने निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे कैपेसिटेंस निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तभी तो हमारे पास, आपको पता है, सबको याद होगा बच्चे, हमने रिलेशन किया था पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, दैट पोटेंशियल, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, dV, याद है एक्सप्रेशन बच्चे, इसके इक्वल आया था -E इंटू dr। सो सबसे पहले हमारा काम क्या है, देखो ये सबसे पहले अगर हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द डेल्टा V। डेल्टा V वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम इट this expression, okay, from this expression we have first of all have to find out the electric field, ठीक है। तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारे पास बताओ बच्चे कितना आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैरेलल इनफाइनाइट पैरेलल, ठीक है, इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पे बच्चे कितनी आ जाएगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम, आपको पता है, वी आर नॉट टेकिंग, वी आर ऑलवेज टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड E2 सेकेंड प्लेट पे बच्चे कितना आ जाएगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड we can write as E1 plus E2, that is a sigma over epsilon naught, sigma over 2 epsilon naught। so E net बचे, E net की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे 2 epsilon over 2 epsilon naught is equal to epsilon over sigma over epsilon naught। We all know sigma is what बच्चे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पता है ना, सिग्मा क्या होता है हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये याद रखनी है वैल्यू, आगे जाके बच्चे हम पुट करेंगे इस वैल्यू को। क्लियर, ओके बच्चे। तो ई नेट की वैल्यू यहाँ से देखो बच्चे हमारे पास कितनी आ गई, ई नेट की वैल्यू देखो बच्चे हमारे पास आ गई यहाँ से, ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज व्हाट बच्चे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया। नाउ पुट द वैल्यू हियर, ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बच्चे। सो दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ये, ओके। हाँ जी बच्चे, अब हमने ये एक्सप्रेशन यूज करना है, नाउ यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे हम, क्या आ जाएगा, दिस वन इज फॉर अ स्मॉल, चेंज के लिए भी बच्चे यूज कर सकते हैं, तो चेंज के लिए कितना आ जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड वाइज है, ठीक है।
so here also positive, so put the value here. कितना आ जाएगा, q over a epsilon naught into dr. dr is what बचे, difference between the distance between the plate, so this is d. तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, सी डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट. नाउ बच्चे नेक्स्ट वन, नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी. ओके, सो सी इज इक्वल टू व्हाट बच्चे, क्यू ओवर डेल्टा वी. नाउ पुट द वैल्यू हेयर, पुट द वैल्यू हेयर बच्चे. What will be the capacitance, charge over delta v. delta v की वैल्यू पुट करो, q d over a epsilon naught. कितनी वैल्यू आ जाएगी, q के साथ q कैंसिल हो गया बच्चे, so a epsilon naught over d. so capacitance of a parallel plate capacitor is a epsilon naught over d. a epsilon naught over d. क्लियर बच्चे. देखो अगर कंडीशन आपको पता है ये किसके लिए आई है, d इज लेस देन दैट मीन्स एरिया ऑफ द प्लेट्स इज मच ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. okay, this is the condition. for that condition the capacitance will be a epsilon naught over d. okay, if we increase the area of the capacitor, then capacitance will be increased. okay, then capacitance will be increases. if we decrease the area distance between, increase the distance between the plates, then the capacitance will decreases. clear बच्चे. okay, so this is the capacitance of the parallel plate capacitor. so write down the numerical, easy numerical है हमारे पास. so we are taking the two conductors, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज, दिस वन इज अ नेगेटिवली चार्ज. हाँ जी बच्चे, दिस वन इज बिहेव लाइक अ पैरेलल प्लेट. ओके, एंड द रेडियस हमने ले लिया इसका r. ठीक है, रेडियस इज r and the distance between them is d. the distance between them is d. ओके, हाँ जी, फाइंड आउट द कैपेसिटेंस. फाइंड आउट द कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस कितनी होगी बच्चे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखो, एरिया. अब देखो बच्चे एरिया कितना होता है इसका, हमारे पास कितना आ जाएगा सर्कल के लिए, एरिया पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर d. so this is the capacitance between the two capacitor. these are the capacitor. clear बच्चे. okay, now the next one is energy stored in a charged parallel plate capacitor. energy stored in a parallel plate capacitor. okay, write down the next topic. energy stored in a parallel plate capacitor. okay बच्चे, this is a parallel को मैं ऐसे ही लिखूंगी. ठीक है, हाँ जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्लेट्स, ठीक है, ऑफ सेम एरिया. क्लियर बच्चे, सेम एरिया, दोनों का एरिया बच्चे क्या है, सेम है. वन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड अनदर वन इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड. क्लियर, ये पॉजिटिवली चार्ज है, दिस वन इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड. ओके, सो इसका जो एरिया है कंसीडर कर लिया ए है. ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम यू नो दैट इज वी कंसीडर दैट इज व्हाट, डी. ओके, डिस्टेंस बिटवीन दैम इज अ डी. ओके, सो लेट, जैसे हमने स्फेरिकल कैपेसिटर में किया था बच्चे, वैसे इसमें भी हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे. ठीक है,
तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं एनर्जी कौन सी है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो हमें पता है वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था, सबसे पहले एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे किसका बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू, डेल्टा वी बच्चे, डी वी लिख सकते हो, डेल्टा वी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। डेल्टा वी इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन टू द, या फिर चेंज इन रहने दो बच्चे, यहाँ पे स्मॉल लिख लो, ठीक है, डी वी डी क्यू ओवर स्मॉल चार्ज। ओके, आपको पता है ये मैंने डी क्यू क्यों लिखा है बच्चे, मैंने आपको बताया था कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज हो, यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए हम एज सच वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वर्क डन करवाएंगे यहाँ से यहाँ। पहले हम कैसे करवाते थे, इन्फिनिटी से लेकर आते थे, ठीक है। ओके ओके, तो हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चे एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। चार्ज बच्चे कितना हो, 0, क्योंकि कुछ भी नहीं है अभी तो, और पोटेंशियल भी कुछ भी डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। और कैपेसिटेंस इसकी कितनी है, C है। क्लियर बच्चे, हाँ जी। आगे टाइम t इज इक्वल टू टी पे, ठीक है, जब सारा बच्चे हम इन्फिनिटी पे निकालते हैं, मतलब फाइनल टाइम पे, ठीक है। अब ऐसे मत बोलना कि इन्फिनिटी यहाँ पे मैम लिया ही नहीं है हमने, तो ये इनफाइनाइट टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब कि लास्ट ऑफ टाइम, ठीक है। जब भी लास्ट टाइम है, ठीक है, वो कंसीडर करें, इट इज़ जस्ट अ कंसिडरेशन, ठीक है। टाइम 0 का मतलब ये नहीं कि 0 टाइम पे, मतलब कि इनिशियल टाइम, और ये फाइनल टाइम। ओके, तो चार्ज बच्चे पूरा का पूरा यहाँ पे कितना ले लेंगे हम, क्यू कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू ओवर सी, यही आएगा, ठीक है बच्चे। कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू ओवर डेल्टा वी, तो हमारे पास पोटेंशियल कितना आ गया, क्यू ओवर सी। क्लियर, ओके ओके। नाउ फॉर अ स्मॉल एलिमेंट, ओके, यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कोई स्मॉल एलिमेंट जिसपे हमने वर्क डन करना है बच्चे, डी क्यू, ठीक है। तो हमने वर्क डन करना है दिस वन, ओके। सो स्मॉल एलिमेंट पता है, ये यहाँ पे हमने कोई प्लस क्यू ले लिया, उसका स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है, दैट इज अ डी क्यू। ओके, तो यहाँ पे एक्सट्रा वर्क डन भी बच्चे क्या आ जाएगा, स्मॉल आ जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे वर्क डन एक्सटर्नल स्मॉल वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे डी क्यू। बच्चे डी क्यू हमारे पास क्या है, डेल्टा क्यू ले रहे हैं हम यहाँ पे, चेंज इन, ठीक है। कितना आएगा, चेंज आएगा, डी क्यू क्या है दोनों के बीच में, ठीक है, डेल्टा क्यू ले रहे हैं हम यहाँ पे। डेल्टा का मतलब क्या है, हमारे पास चेंज है, डी क्यू का मतलब क्या होता है, स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम कंसिडर कर सकते हैं डेल्टा क्यू इंटू डी क्यू, ठीक है। फ्रॉम दिस, यहाँ से मैंने लिखा है इसे ऐसे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे डेल्टा क्यू के इक्वल लिखना है लिख सकते हो, दिस इज योर विश, ओके। तो हमारे पास देखो बच्चे टोटल वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा वी की वैल्यू पुट करो बच्चे, कितनी आ जाएगी, Q ओवर C इंटू डेल्टा Q। हमने लेना है एट टाइम, सॉरी यहाँ पे बच्चे एक बात का ध्यान रखना है आपको, ये इनफाइनाइट टाइम पे आया हमारे पास Q ओवर C, और अगर बीच में कोई टाइम हो बच्चे T, तो उसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, चार्ज हम कंसीडर कर लेते हैं कोई स्मॉल चार्ज होगा Q, ओके। तो डेल्टा V की वैल्यू बच्चे उसके लिए देखो कितनी आएगी, डेल्टा क्यू V इज इक्वल टू क्यू ओवर सी। तो इसके लिए निकालना है, ये हमें पता है, ये तो नोन ही है, इसके लिए निकालना है। तो देखो बच्चे एक्सटर्नल वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा V इंटू डी क्यू। नाउ टेकिंग द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बच्चे कहाँ से कहाँ आएगी, 0 चार्ज से, फाइनल कितना है Q, ओके। नाउ पुट द वैल्यू हेयर, डेल्टा क्यू इज व्हाट बच्चे, क्यू ओवर सी। वी हैव फाइंड आउट फॉर अ टाइम t, ठीक है। जब टाइम t के लिए हम उस टाइम के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो 0 टू q आ गया बच्चे, कितना आ गया q। क्लियर, तो बच्चे देखो कैपेसिटेंस बाहर निकाल लो, 0 टू q,
q into dq. नाउ यू नो द इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, डेल्टा, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया सॉल्व करके, एक्सटर्नल वर्क डन. ओके बच्चे, सो दिस एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, 1/c q square upon 2 and with their limit, and external work done is equal to q square over 2c. This work done we can write as a potential energy. Okay, so we can write as potential energy. Potential energy is what bache, we are taking here u is equal to half q square over c. Okay, so this is a potential energy in parallel plate capacitor, so which is same as दैट ऑफ द स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर. स्फेरिकल में भी इतनी आ रही थी हमारे पास, ठीक है. आप टर्म्स चेंज करके लिख सकते हो, मैंने पहले भी लिखवाया था आपको स्फेरिकल के केस में कि क्या आ जाएगा. अगर आप इन टर्म ऑफ क्यू बी लिखना चाहते हो तो वो भी आ जाएगा आपके पास, कितना, हाफ क्यू बी. ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ क्यू बी. ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो इन टर्म ऑफ वी सी तो कितना आ जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर. क्लियर बच्चे, तो ये हमारे पास आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ओके, हाँ जी, आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे. बच्चे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. आगे बच्चे इसके बाद आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज, पैरेलल एंड सम मेथड. ठीक है, टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस, और उसका न्यूमेरिकल एग्जाम में बच्चे बोर्ड में ज़रूर आता है. तो आपने इन सब चीज़ों को ध्यान से करना है. कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछना है. ओके बच्चे, कई बच्चे पूछते हैं, ठीक है, बट बहुत कम बच्चे हैं. आप देख लो बच्चे, अच्छे से कर लो. अगर नहीं समझ आता है तो मुझे कभी भी कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हो. ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू.